بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ دیکھ مجید، چچا کمالے کو اچھی طرح سمجھا لے کہ اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھے، میری بھانجی کو زیادہ تنگ نہ کرے، ورنہ ہم پر اپنی بیٹی بوجھ نہیں ہے، واپس لے آئیں گے اور اس کا وہ حال کریں گے کہ یاد رکھے گا۔ غضب خدا کا، شرم حیا بیچ کر کھا لیا ہے اس لڑکے نے۔ میں آج ہی خالہ تو بسم سے بات کرتی ہوں، سارے خاندان کو اکٹھا نہ کیا تو میرا نام بھی شہناز نہیں ہے۔ مجید نے جلدی جلدی روٹی کھاتے ہوئے کہا، تو مجھ سے نہیں ڈرتی، کسی اور سے کیا ڈرے گی؟ فکر نہ کر، میں کمال چچا سے آج ہی بات کروں گا۔ ارے دنیا کے کون سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا؟ تو کم سوچ، ڈپریشن لے کے پاگل ہو جائے گی۔ اس کے بعد مجید نے پانی پیا اور چارپائی سے نیچے اترنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر مجید کے چپل جو تھوڑے دور پڑے تھے اٹھا کر مجید کے پاؤں کے پاس رکھے۔ میرے شوہر مجید نے چپل پہنے اور بولا، میں چلتا ہوں، مجھے بہت جلدی ہے، مالک انتظار کر رہا ہوگا۔ میں بولی، اچھا یہ تو بتا، چچی حنیفہ آ رہی ہے؟ میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں، شادی کو 6 سال ہو گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی، آپ صبح نکلتے رات گئے واپس آتے، میں اکیلی گھر میں بیٹھ کر خاموش دیواروں کو کتنا دیکھوں۔ مجید نے مڑ کر مجھے دیکھا، اپنے کندھے پر رکھی دھوتی ٹھیک کرتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے تیری بے چین روح تجھے آرام سے کب بیٹھنے دے گی۔ ٹھیک ہے چلی جانا، جب میں واپس آؤں گا تو بات کریں گے، اور آج رات کے لیے ماسی کو کہہ کہ تیرے پاس ہی آ جائے یا تو گھر چلی جانا، کیونکہ آج میں گھر نہیں آؤں گا، میں نے سامان پہنچانے کے لیے دور جانا ہے اور میں چچا کمال سے ملتا جاؤں گا، اس لیے کسی سے جھگڑا مت کرنا، کل مجھے واپس آنے دے، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں بولی، ہاں آپ فکر نہ کریں، میں خاموش رہوں گی۔ مجید مسکراتا ہوا بولا، چل رب رکھا۔ میں نے کہا، رب رکھا، اور مجید چلا گیا۔ میں نے کھانے کے برتن اٹھائے اور باورچی خانے میں رکھا ہی تھا کہ چچی حنیفہ آ گئی اور بولی، ارے شہناز کہاں ہے تو؟ میں نے پکارا، چچی میں یہاں باورچی خانے میں برتن دھو رہی ہوں، بس ابھی آئی۔ چچی نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجید چلا گیا کیا؟ میں نے کہا، ہاں چچی تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے۔ میں نے جلدی جلدی برتن دھوئے، کچن سے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی نکلی اور بولی، چچی چائے بناؤں تمہارے لیے؟ چچی حنیفہ کہنے لگی، چائے واپسی پر پیئیں گے، آج میں سارا دن تیرے گھر ہی ہوں، ابھی مجھے صرف ایک گلاس پانی دے دے اور چادر لے آ، پہلے ہم حویلی سے آئیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چچی۔ میں کچن میں گئی، گلاس میں چچی کے لیے پانی لے کر آئی۔ میں نے گلاس چچی کو دیا اور بولی، چچی تم پانی پیو، میں چادر لے کر آئی۔ میں کمرے میں گئی، چادر لی، تالا چابی اٹھایا اور باہر آ گئی۔ چچی نے اپنا ٹوپی والا بھرکا درست کیا اور کھڑی ہو گئی۔ ہم گھر سے باہر نکلے، میں نے گھر کو تالا لگایا اور چل پڑی۔ چچی نے کہا، شہناز میاں بیوی آئے ہیں، سالوں سے حویلی خالی پڑی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا ہے، 6 ماہ کا، اسے ہی سنبھالنا ہے، شوہر تو پھر ملک سے باہر کام کرتا ہے اور بیوی حویلی میں ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا، چچی اتنی بڑی حویلی میں اور کوئی نہیں رہتا؟ چچی نے کہا، نہیں تو، اور تو کوئی نہیں رہتا، اتنی بڑی حویلی ہے، مالکن کو حویلی بھی تو سنبھالنی ہوگی، تبھی تو اسے نوکرانی چاہیے جو بچے سنبھال سکے۔ میں نے کہا، چچی وہ حویلی تو بہت دور ہے جو تم بتا رہی ہو، وہاں میں روز رکشے میں کیسے جاؤں گی؟ چچی کہنے لگی، رکشے کے پیسے بھی وہ خود تجھے دے گی، تبھی تو تجھے لے کر جا رہی ہوں، ورنہ کیوں لے جاتی؟ میں نے کہا، ہاں پھر تو ٹھیک ہے چچی۔ ہم باتیں کرتے چوک تک آ گئے، وہاں پہلے ہی رکشے والے کھڑے تھے، ہم ایک رکشے میں بیٹھے اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا نام شہناز ہے، ہم 7 بہن بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں اور ابو کے مطابق سب سے چھوٹی بیٹی سب سے لڑاکا ہے۔ میرے شوہر مجید ٹرک ڈرائیور ہیں، شادی کو 6 سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ہے۔ پہلے ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، مگر سال پہلے اللہ نے مہربانی کی، مجید کا بانڈ لگ گیا، کچھ پیسے قرض لیے اور اپنا گھر خرید لیا۔ اللہ کے کرم سے اب گھر تو اپنا ہے، قرض بھی کچھ عرصے میں اتر ہی جائے گا۔ مجید بھی اب پہلے سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، اسی لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ ویسے بھی گھر میں خالی دیواروں کے ساتھ کوئی اتنی باتیں کیسے کرے گا؟ یہی کام کر لوں گی تو قرضہ اتارنے میں شوہر کا بھی ہاتھ بٹا دوں گی اور میرا وقت بھی گزر جائے گا۔ ویسے بھی تعلیم بھی اتنی نہیں تھی کہ کوئی نوکری کرتی، صرف مڈل کیا ہوا تھا، اسی لیے اس وقت کچھ کرنا ضرور تھا۔
اللہ پاک اولاد دے دے تو زندگی میں کتنی رونق لگ جائے گی۔ اولاد کے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے باغ میں پھول تو ہوں مگر پھولوں میں خوشبو نہ ہو۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی تھی کہ اچانک چچی حنیفہ نے میرا ہاتھ ہلایا۔ ارے شہناز، کہاں کھوئی ہے؟ وہ دیکھ حویلی آ گئی۔ میں نے چونک کر چچی کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں چچی، کہاں ہے حویلی؟ چچی حنیفہ بولی، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے، باہر دیکھ۔ اتنے میں ڈرائیور نے بریک لگائی اور بولا، لو خالہ، حویلی آ گئی۔ ہم رکشے سے اترے۔ میں نے کرایہ دینا چاہا مگر چچی نے منع کر دیا۔ چچی نے کرایہ ادا کیا۔ حویلی کے باہر گارڈ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ہمیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ چچی نے کہا، بیٹا میں کل بھی آئی تھی، یاد ہے نا؟ یہ سن کر گارڈ نے حویلی کا گیٹ کھول دیا۔ ہم حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے کہا، چچی، کسی زمانے میں یہ حویلی ملک مظفر کی تھی، اس کے بچے ملک سے باہر شفٹ ہو گئے تھے۔ ملک مظفر تنہا اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے صرف اس کا جنازہ پڑھانے اور کفن دفن کے لیے آئے اور دوبارہ چلے گئے۔ چچی نے کہا، ہاں سنا تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے حویلی خرید لی ہے، ملک ظفر نے کتنے دل سے بنوائی تھی، مگر اس حویلی میں اسے خوشیاں نصیب نہ ہوئی۔ اس کے بچے جو باہر گئے پاکستان واپس نہ آئے۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ حویلی کی مالکن ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ چچی کو دیکھ کر بولی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ چچی اور میں نے مالکن کو سلام کیا۔ مالکن نے سلام کا جواب دیا۔ ہم صوفے پر بیٹھ گئے۔ چچی نے کہا، بیگم صاحبہ، یہ میری بھتیجی ہے، اسے کام کی ضرورت ہے۔ ویسے تو شوہر بہت اچھا کماتا ہے مگر پچھلے سال اپنا گھر خریدا ہے تو کچھ قرض بھی لینا پڑا۔ شاید آپ کو علم بھی نہ ہو کہ قرض اتارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مالکن نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ قرض اتارنا بہت مشکل کام ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مالکن نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، جی شہناز نام ہے میرا۔ مالکن نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تنخواہ اچھی دوں گی، گھر آنے جانے کے لیے رکشہ بھی لگوا کر دوں گی، سردی گرمی کے کپڑے بھی میں دوں گی، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہنا، بس تمہیں میرے بیٹے کو سنبھالنا ہوگا۔ اتنی بڑی حویلی ہے، گھر کے بہت سے کام نکل آتے ہیں، تم نے سارا دن میرے بیٹے کو سنبھالنا ہے۔ مالکن کی آفر اتنی جاندار تھی کہ میں انکار نہیں کر سکی۔ مالکن نے کہا، اگر آج رک سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ کل سے لازمی آ جاؤ۔ چچی نے کہا، بیگم صاحبہ، میرا خیال ہے کل سے ٹھیک رہے گا۔ مالکن نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جہاں اتنے گزر گئے ایک دن اور گزر جائے گا۔ چچی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں اجازت دیں۔ بیگم صاحبہ بولی، اتنی جلدی کیا ہے، چائے پی کر جائیں، میں بنا کر آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں مالکن، آپ کیوں بنائیں گی، کل میں آؤں گی تو میں خود بناؤں گی۔ مالکن نے کہا، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ میں بولی، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ وہ بولی، وہ اوپر کمرے میں سو رہا ہے، تبھی تو اتنے آرام سے بیٹھی ہوں۔ چچی کھڑی ہوئی، انہوں نے مالکن سے اجازت مانگی۔ ہم آخر واپس اپنے گھر کی طرف ہو لیے۔ اگلے دن فجر کے وقت ہی میرے شوہر مجید گھر پہنچ گئے۔ میں نے انہیں ناشتہ بنا کر دیا۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور بولے، شہناز، کمرے میں کوئی نہ آئے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے بہت نیند آئی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ مجید سو گئے تو میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات چونکہ میں اکیلی تھی اسی لیے چچی حنیفہ میرے پاس ہی رک گئی۔ وہ بھی وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہی تھی۔ صبح ہو گئی، نماز کے بعد میں اور چچی ناشتہ کر رہے تھے۔ چچی نے کہا، جب مجید سو کر اٹھ جائے تو میری صلاح ہے کہ مجید کو ساتھ لے کر حویلی چلی جانا، اچھا ہے وہ بھی حویلی دیکھ لے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو چچی، میں ایسا ہی کروں گی۔ میرے شوہر دوپہر کے وقت سو کر اٹھے۔ میں نے انہیں روٹی دی، انہوں نے روٹی کھائی۔ میں نے انہیں حویلی کے کام کی بات بتائی تو وہ کہنے لگے، دیکھ شہناز، میں تجھے کام کے لیے بالکل اجازت نہ دیتا، مگر صرف اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ میرے کام کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی پورا دن نکل جاتا ہے اور کبھی رات آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، روٹی کھا کر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، اللہ ہمیں اولاد دے دے، بس پھر مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے آمین کہتے ہوئے کھانا ختم کیا۔ میں نے تیاری کی اور ہم مالکن کی حویلی پہنچ گئے۔ مالکن بہت خوش اخلاق تھی، لان میں بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، شہناز،
तो कह रही थी कि आज से तुम काम पर जाओगी, तुम अब आ रही हो। मैंने सलाम के बाद शोहर का तारुफ करवाया और बोली, बेगम साहिबा, मेरे शोहर घर लेट आए थे, सोचा आपसे मिल लाऊं और उन्हें भी हवेली दिखा दूं। मालकिन ने हमें कुर्सियों पर बिठाया और मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मैंने चाय बनाई। हम सब ने मिलकर चाय पी, खूब गपशप की। मालकिन के शोहर मुल्क से बाहर रहते थे और यहाँ उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। उन्हें भी किसी बाएतमाद मुलाजमा की ज़रूरत थी। शुक्र है कि मुझे भी अच्छी खातून मिल गई। मजीद को भी तसल्ली हो गई और हमने वापसी की इजाज़त ली। मालकिन ने कहा, शहनाज, तुम्हारे घर का एड्रेस मैंने लिख लिया है। कल सुबह 9 बजे रिक्शे वाला तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा और शाम 5 बजे घर छोड़ देगा। मैंने मालकिन का शुक्रिया अदा किया। हम घर वापस आ गए। मेरे शोहर मजीद को भी मालकिन बहुत अच्छी और नेक दिल लगी थी। रोज़ाना रिक्शे वाला मुझे लेने के लिए ठीक 9 बजे घर आ जाता और शाम 5 बजे घर वापस छोड़ देता। मुझे हवेली में काम करते हुए 1 माह गुजर गया था। महीने के आखिर में मालकिन ने तनख्वाह के साथ जो कुछ मुझे दिया तो मेरा तो दिल खुश हो गया। तनख्वाह, मेरे और मजीद के लिए बिल्कुल नए कपड़े, घर के लिए कुछ सामान भी। कमाल है, मैं तो हैरान थी कि इतना कौन देता है। मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि मुझे ऐसी मालकिन मिली है। एक दिन मजीद को ट्रक का माल लेकर शहर से बाहर जाना था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं मालकिन के पास ही रुक जाती हूँ। मालकिन का बेटा असद तो वैसे मेरी आंख का तारा बन चुका था। मैंने मालकिन से बात की और रात हवेली में ही रुक गई। मालकिन ने रात में मुझे असद के साथ ही सोने के लिए कह दिया और खुद दूसरे कमरे में सो गई। असद को सुलाने के बाद न जाने मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। रात तकरीबन 1 बजे असद ने हल्की फुल्की रोने की कोशिश की। मैंने उसे थपथपा कर सुलाने की कोशिश की तो वो सो गया। अचानक ही मुझे कमरे की खिड़की पर साया नजर आया। बाहर कोई था। मुझे डर भी बहुत लगा, मगर बेहतर था कि मैं उठकर देख लेती। मैंने उठकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। अचानक मेरी नज़र मालकिन पर पड़ी। मालकिन आधी रात को बाहर क्या कर रही थी? मालकिन हवेली की पिछली साइड पर चली जा रही थी। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली की बैक साइड पर माल्टू का बाग था। मालकिन रात के 1 बजे माल्टू के बाग की तरफ जा रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मालकिन के पीछे चल पड़ी। मालकिन बाग की तरफ जा रही थी। एक तो पिछले साइड पर जो बल्ब लगा हुआ था उसकी रोशनी भी बहुत कम थी और ये बहुत कम वोल्टेज का बल्ब था जो ख़ास रात के वक्त लगाया गया था, इसलिए रोशनी भी बहुत मध्यम थी। मालकिन बाग के अंदर दाखिल हो गई। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती बाग की तरफ बढ़ी कि मालकिन को रोकूं, उनसे पूछूं कि उन्हें क्या चाहिए। मैं बाग के करीब पहुंची। अंदर जाने लगी थी कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। मालकिन खड़ी थी। बोली, क्या हुआ शहनाज? मैं दिल पर हाथ रखते हुए कहने लगी, मालकिन, आपने तो मुझे डरा दिया। मालकिन बोली, तुम वहाँ क्यों जा रही थी? मैंने कहा, मैं तो आपके पीछे जा रही थी। आप बाग के अंदर क्या करने जा रही थी? मैंने सोचा कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। अचानक मालकिन की आंखें सुर्ख हो गई। उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली और गिरजी, जल्दी से मेरा बच्चा मुझे लाकर दे वरना तेरी जान निकाल लूंगी। मालकिन की तो आवाज़ ही बदल गई। मेरा सांस उखड़ने लगा। मैं गर्दन छुड़ाने के लिए हाथ मारने लगी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। मुझे लग रहा था कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है कि अचानक मालकिन दौड़ती हमारी तरफ आई। वो चिल्लाई, शहनाज, छोड़ दो इसे। मुझे जिस औरत ने पकड़ रखा था उसने मालकिन की तरफ देखा और मुझे छोड़ दिया और बाग के अंदर भाग गई। मैं नीचे गिर पड़ी। उसने मेरा गला इतनी जोर से दबाया था कि जैसे मुझे जान से ही मार डालेगी। मालकिन दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, शहनाज, तुम ठीक हो? मैं हैरत और खौफ से मालकिन को देख रही थी। मैंने कहा, मालकिन, मेरा गला तो आप ही दबा रही थी। मालकिन बोली, तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने अभी आई हूँ। मैंने कहा, लेकिन वो भी आप ही थी। मालकिन ने मुझे उठाते हुए कहा, शहनाज, तुम उठो, मेरे साथ अंदर चलो। इतने में गार्ड भी वहीं चला आया और बोला, बेगम साहिबा, क्या हुआ? मालकिन ने मुझे सहारा देकर उठाते हुए कहा, अशरफ, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तुम्हें कुछ इल्म नहीं? इस तरह तुम घर का ख्याल रखते हो? मालकिन मुझे सहारा दिए कोठी के अंदर ले जाने लगी। हम अंदर आए। ड्राइंग रूम में मालकिन ने मुझे सोफे पर बिठाया।
जल्दी से किचन में गई और मेरे लिए पानी का गिलास ले आई। मालकिन ने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया और बोली, शहनाज पानी पियो, तुम्हें पसीना आया है, तुम अभी जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैंने पानी पिया। इतने में मालकिन कमरे की तरफ ये कहते हुए भागी, मेरा बेटा। मैंने भी गिलास मेज पर रखा और मालकिन के पीछे कमरे की तरफ भागी। मालकिन दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुई। असद पुरसुकून सो रहा था। उसे देखकर जैसे हम दोनों की जान में जान आ गई। मालकिन ने कहा, शुक्र अल्लाह का शहनाज, तुम असद के पास सो जाओ, मैं इसे हिलाती नहीं वरना उठ जाएगा, सुबह बात करेंगे। ये कहकर मालकिन कमरे से चली गई। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और असद के पास सो गई। सुबह मैंने नाश्ता तैयार किया और घर जाने की इजाज़त मांगी, क्योंकि मेरे शोहर ने कहा था कि वो अगले दिन 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। 10 बजने में आधा घंटा ही रह गया था। मालकिन ने कहा, ठीक है शहनाज, तुम अभी जल्दी में हो, वापस आओगी तो तसल्ली से बात करेंगे। मैंने भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। इतने में मेरा रिक्शा आ गया। मैं घर के लिए निकल आई। 10 बजे तक मजीद भी घर पहुंच गए। हमेशा की तरह वो घर आते ही सो गए। मैं किचन के कामों में मसरूफ़ हो गई। इसी दौरान चची हनीफा भी चली आई। वो सहन में ही बैठ गई और बोली, क्या हाल है शहनाज, अच्छी सी चाय तो पिला। मैंने कहा, अभी लाई। मैंने चची के लिए चाय बनाई और कप ट्रे में रखे। बाहर सहन में गई। मैंने ट्रे मेज़ पर रखी, चची को कप पकड़ाया। चची ने कप पकड़ते हुए कहा, शहनाज कैसा जा रहा है तेरा काम। मैंने कहा, चची काम तो ठीक जा रहा है, मगर। चची ने कहा, मगर क्या। मैंने कहा, चची क्या मालकिन की कोई जुड़वा बहन भी है। चची ने कहा, मेरी जितनी इत्तला है मालकिन का यहाँ कोई और जुड़वा बहन या भाई नहीं है, इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्यों, तू क्यों पूछ रही है। मैं कुछ कहने ही लगी थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। सादा मोबाइल मुझे मालकिन ने ही लेकर दिया था। मालकिन का ही फ़ोन था। वो कह रही थी, शहनाज तुम कब तक आओगी, असद बहुत रो रहा है। मैंने कहा, मालकिन मेरे शोहर सो रहे हैं, वो उठ जाए तो उन्हें खाना खिलाकर आ जाऊंगी। मालकिन बोली, शहनाज जल्दी आ जाना, आज तुमने यहीं रुकना है, अपने शोहर को भी बता दो। मैंने कहा, आपकी बात दुरुस्त है मालकिन, मगर। मालकिन ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस शहनाज तुम जल्दी करो। ये कहकर मालकिन ने फ़ोन बंद कर दिया। खैर चची कुछ गपशप के बाद चली गई। मेरे शोहर उठे और शुक्र है जल्दी उठ गए। मैंने उन्हें खाना दिया। इस दौरान मालकिन के कई मैसेज आ गए कि शहनाज जल्दी आ जाओ। मैंने रिक्शे वाले को फ़ोन कर दिया। मैं तैयार हो गई। कुछ देर तक रिक्शे वाला मुझे लेने के लिए आ गया। मजीद को ज़रूरी काम था, वो भी बाहर चले गए और मैं रिक्शे में बैठी हवेली पहुंच गई। जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुई, गार्ड ने कहा, बेगम साहिबा बहुत परेशान है और तुमसे नाराज़ भी हैं। मैं कुछ कहने ही लगी थी कि बंगले के अंदर से मालकिन के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। गेट कीपर बोला, क्या हो रहा है अंदर। हम दोनों बंगले की तरफ भाग पड़े। ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। मालकिन असद को गोद में उठाए कमरे से बाहर निकली। असद बुरी तरह से रो रहा था। मुझे देखते ही मालकिन ने असद को मेरी गोद में दिया और बोली, शहनाज मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसे संभाल कर रखना। मेरा बेटा तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मालकिन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने कहा, क्या बात है मालकिन। मालकिन चिल्लाई, शहनाज अभी के अभी बंगले से बाहर निकल जाओ, फौरन जाओ। मैं बौखलाहट से पीछे हटी। मालकिन चिल्लाई, तुम दोनों फौरन बाहर निकलो। हम डर के मारे बाहर की तरफ भागे। मालकिन भी हमारे साथ आ रही थी, मगर जैसे ही हम ड्राइंग रूम से बाहर निकले, मालकिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद मालकिन शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पर्दे गिराने लगी। मैंने पुकारा, मालकिन क्या बात है, खुदा के लिए बताएं। मगर मालकिन ने ड्राइंग रूम के सारे पर्दे गिरा दिए। अंदर क्या हो रहा था हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा मालकिन को पुकारा, मालकिन खुदा के लिए कुछ तो बताएं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मालकिन ने सिर्फ इतना कहा, शहनाज मेरे बेटे को अपने घर ले जाना, यहाँ मत छोड़ना। उसके बाद ड्राइंग रूम के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, जैसे वो किसी के साथ लड़ाई कर रही हों। चीज़ों के गिरने और टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। अचानक ऐसे लगा जैसे कोई ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, मगर खोल नहीं पा रहा। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। हम खौफ के मारे पीछे हटने लगे। गेट कीपर बोला, बाजी शहनाज भागो, बाहर भागो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने कहा, लेकिन भाई
हम मालकिन को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गेट कीपर बोला, शहनाज बहन, इस वक्त बच्चे की जिंदगी बहुत अहम है। अचानक खिड़की पर लगे शीशे टूटने लगे। जैसे ही एक शीशा टूटा, मालकिन की आवाज आई, शहनाज, मेरा बेटा तुम्हारे पास मेरी अमानत है। गेट कीपर बोला, भागो शहनाज बहन। हम हवेली से बाहर की तरफ भागने लगे। ड्राइंग रूम में लगी शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियों के शीशे एक एक करके टूटने लगे। हम हवेली से बाहर निकले। गेट कीपर ने गेट बंद कर दिया, मगर जब वो गेट बंद करने लगा, हम अंदर की तरफ देख ही रहे थे। ड्राइंग रूम के टूटे हुए शीशे से मालकिन नजर आ रही थी। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि कोई मालकिन को बुरी तरह से मार रहा था और घसीट रहा था कि उसी वक्त गेट कीपर ने गेट बंद कर दिया और बोला, शहनाज बहन, चलो यहाँ से। मैंने कहा, भाई, क्या हम मालकिन को अकेला छोड़ देंगे? गेट कीपर ने फोन जेब से निकाला और बोला, बहन, तेज तेज कदम उठाओ, हमने हवेली से दूर जाना है। मैं पुलिस को फोन करने लगा हूँ, पुलिस आएगी तो खुद ही संभाल लेगी। हम तेज तेज चलते हवेली से दूर निकल आए। गेट कीपर ने पुलिस को फोन किया और मुख्तसरन पुलिस को सारा मुअम्मा सुनाया और हवेली का एड्रेस भी दिया। इतने में हमें रोड पर पैदल चलता देखकर एक रिक्शे वाला भी आ गया। हम रिक्शे में बैठे और रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। गेट कीपर ने कहा, शहनाज बहन, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। हो सकता है पुलिस मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाए। मैंने असवद को गोद में लिया हुआ था। मुझे उस पर इतना प्यार आया, वो रोते रोते मेरी गोद में ही सो चुका था। मेरा घर आ गया। मैं रिक्शे से उतरी। गेट कीपर ने कहा, शहनाज बहन, कोई ज़रूरी बात हो तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताना। मैंने कहा, ज़रूर बताऊंगी, मगर भाई, मुझे मालकिन की बहुत फिक्र है, मुझे लाजमी मालकिन के बारे में बताना। गेट कीपर बोला, बहन, मामला कुछ क्लियर हो जाए तो शाम के वक्त फ़ोन कर दूंगा। उसके बाद वो चला गया। दरवाजे का ताला खुला हुआ था। शायद मजीद वापस घर आ चुके थे। मैं घर के अंदर आ गई। मेरे शोहर सहन में बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, अरे शहनाज, बड़ी जल्दी आ गई हो। मैं अभी अभी वापस आया हूँ, थकावट थी तो खुद ही चाय बना ली। मैं चारपाई पर बैठ गई। मजीद ने मेरी गोद में असवद को देखा तो बोले, ये कौन है शहनाज, किसे उठा लाई है? उसी वक्त मेरे आंसू गिरने लगे और मैं रोने लगी। मजीद ने चाय का कप पास रखी टेबल पर रखा और बोले, शहनाज, तू रो क्यों रही है? मैं दुपट्टे से अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। मजीद मेरे पास उठकर आए और बोले, शहनाज, बता तो सही, क्यों रो रही है? और ये बच्चा कौन है? मैंने असवद को चारपाई पर सुलाया। वो अब तक मीठी नींद सो रहा था। मैं अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मजीद, खुदा के लिए कुछ करें, मेरी मालकिन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये असवद है, मेरी मालकिन का बेटा। मजीद ने करीब रखी कुर्सी खींची, कुर्सी पर बैठ गए और बोले, शहनाज, मुझे पूरी बात बता के हुआ क्या है? मैंने एक बार फिर आंसू पूंछे और रोते रोते मजीद को सारा वाकया सुनाया। मेरे शौहर हैरत के मारे कुर्सी से खड़े हो गए। वो दोनों हाथ कमर पर बांधकर टहलने लगे और बोले, शहनाज, ये तो वाकई बहुत फिक्रमंदी वाली बात है। तेरे पास फ़ोन नंबर है बंगले के चौकीदार का? हाँ। मैंने अपना मोबाइल मजीद को पकड़ाया जो मुझे मालकिन ने दिया था। मैंने कहा, हाँ, इसमें उसका नंबर है, आप फ़ोन करके उससे पूछें तो सही। मेरे शौहर ने झट से मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया। मेरे मोबाइल में 5 ही तो नंबर थे। एक मेरे शौहर मजीद का, दूसरा मालकिन का, तीसरा चची हनीफा का और चौथा गेट कीपर का और एक अम्मी का। मजीद ने गेट कीपर को फ़ोन मिलाया। मैं भी चारपाई से उठ खड़ी हुई। मेरे शौहर बोले, अशरफ भाई, मैं शहनाज का शौहर बात कर रहा हूँ, हवेली पर पुलिस पहुँच गई है, मालकिन का क्या हाल है? गेट कीपर ने कहा, जी भाई, पुलिस तो पहुँच गई है, मगर बेगम साहिबा हवेली में नहीं है। कहाँ गई कुछ नहीं पता। मेरे शौहर बोले, अच्छा, तुम कहाँ हो? गेट कीपर बोला, मैं यहीं हवेली में हूँ और पुलिस भी यहीं है। मेरे शौहर बोले, ठीक है, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ मजीद? तो वो बोले, पुलिस हवेली में आई और बेगम साहिबा का कुछ पता नहीं। मैं दोबारा रोने लगी। मैंने रोते हुए कहा, मजीद, मेरी मालकिन किसी बड़ी मुश्किल में है। हाय अल्लाह, मेरी मालकिन कहाँ गई? मेरे शौहर मजीद कहने लगे, अल्लाह का वास्ता है शहनाज, तू तो चुप कर जा, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा, मजीद, मैं भी चलूँ? मजीद बोले, तू मेरे साथ चली जाएगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा, बच्चे को भी ले लेती हूँ। मजीद ने कहा, ओ नेक बख्त, बच्चे को क्यों परेशान कर रही है?
इतने में असवद ने करवट ली और हल्का हल्का रोने लगा। मजीद कहने लगे, ले उठ गया है, अब इसे संभाल, मैं हवेली जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो सब कुछ बताऊँगा। ये कहकर मजीद तेज़ी से घर से निकल गए। असवद उठकर बैठ गया, मुझे ही देख रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। 8 माह का असवद एक खूबसूरत बच्चा था। मेरे शौहर हवेली पहुँचे। पुलिस तफ्तीश ख़त्म करके हवेली के लॉन में जमा थी और गेट कीपर के साथ बातचीत कर रही थी। मेरे शौहर को देखते ही एसएचओ ने कहा, तुम कौन हो? मेरे शौहर बोले, वो जी मैं शहनाज का शौहर हूँ। मेरी बीवी मालकिन की खास मुलाजमा थी, 2 माह से यहाँ काम कर रही थी। मालकिन बहुत अच्छी औरत थी, मैं खुद उनसे मिलकर गया था। एसएचओ ने पूछा, तुम क्यों उनसे मिलने आए थे? मेरे शौहर ने कहा, एसएचओ साहब, जाहिर है अगर कहीं मेरी बीवी काम करने जाएगी तो मैं वो जगह तो देखूंगा, उन लोगों से मिलूंगा जिनके पास मेरी बीवी ने काम करना है। एसएचओ ने हाँ में सर हिलाया और गेट कीपर से पूछा, तुम्हारे मालिक का कोई फ़ोन नंबर है? उन्हें किसी ने मुतला किया है? गेट कीपर ने कहा, नहीं जनाब, बड़े साहब का नंबर हमारे पास नहीं है। बेगम साहिबा को यहाँ आए सिर्फ 3 माह ही हुए थे। हमें तो वो यही कहती थी कि बड़े साहब बाहर रहते हैं, अब कहाँ रहते हैं, उनका नंबर वगैरह हमें कुछ मालूम नहीं। एसएचओ ने कहा, मजीद साहब, मुझे आपकी बीवी का बयान लेना पड़ेगा। मेरे शौहर बोले, बिस्मिल्लाह, अब बिल्कुल लें। एसएचओ ने कहा, ठीक है, हमें अपने घर ले चलें। पुलिस मजीद के साथ मेरे घर आई, मेरा बयान लिया और चली गई। असवद 8 महीने का हो चुका था। जब भी मालकिन की याद आती मेरी आंखें नम हो जाती। न जाने कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। शाम को ही मजीद की कॉल आ गई। रात की ड्यूटी लग गई थी। मालिक ने कहा कि लाजमी काम पर पहुंचे। मैंने कहा, मजीद सच पूछ तो इस काम को तो तू छोड़ ही दे, किसी भी वक्त फ़ोन करके बुला लेते हैं, मैं अकेली घर में आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। वो बोले, सच पूछ तो मैं भी दिन रात के सफ़र की वजह से थक चुका हूँ, बस कर्जा उतर जाए फिर देखता हूँ कोई अपना काम शुरू करूँगा। मैंने कहा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। वो बोले, अच्छा आज रात गुजारा कर, मुझे अपने हाथ की अच्छी सी चाय पिला ताकि मैं जाऊँ, और चची हनीफा को बुलाना है तो बता, मैं फ़ोन कर देता हूँ। मैं किचन में जाते हुए बोली, रोज़ रोज़ चची को क्या तकलीफ़ देना, सुबह आपने वापस आ ही जाना है, वैसे भी मेरे पास असवद है, मैं अकेली नहीं हूँ। थोड़ी देर में चाय बनाकर लाई, कप शौहर को पकड़ाया तो मेरे शौहर बोले, अच्छा दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना। मेरे शौहर ने चाय पी, तैयारी की और चले गए। मगरिब हो चुकी थी। मैं किचन में असद के लिए फीडर बना रही थी। असद मेरे पास ही बैठा कुर्सी पर खेल रहा था। शुक्र है कि 2 माह असद को संभालने की वजह से असद मुझसे खासा मनूस था, वरना मैं उसे कैसे संभालती। मुझे तो भूख ही नहीं थी। मालकिन की बहुत याद सता रही थी। ऊपर से मजीद भी काम पर चले गए। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने असद को फीडर दिया और उसे गोद में लिटा लिया। असद फीडर पीने लगा। मैंने अपने लिए चाय तैयार की और चाय पीने लगी। असद फीडर पी रहा था और अपने नन्हे हाथ मेरे चेहरे पर मार रहा था। हाय, मेरा दिल भर आया। औलाद दिल का सुकून और आंखों की ठंडक होती है। न जाने अल्लाह मेरी गोद कब भरेगा। मेरा बस चलता तो असद को खुद से अलग ना करती, लेकिन जाहिर है असद मेरे पास मेरी मालकिन की अमानत है। बिछड़ते वक्त मालकिन ने असद को मेरी गोद में देते हुए कहा था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। असद ने दूध ख़त्म किया और फीडर ज़मीन पर फेंक दिया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे उस पर इतना प्यार आया कि मैंने असद को सीने से लगा लिया और उससे बातें करने लगी। इसी असना में वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने लगा। उस अचानक अफ्ताद से मैं डर गई। खुदा खैर करे। असद को गोद में उठाए मैं बाहर की तरफ भागी और ये देखकर मेरी जान निकल गई। वॉशरूम के पास एक औरत हवा में मुअल्लिक थी। उसका आधा जिस्म तो सलामत था, मगर निचला धड़ मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हवा में परछाई बनकर उड़ रहा हो। असवद डर न जाए, मैंने असवद की आंखों पर अपना हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं शदीद खौफजदा थी। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? वो अजीब व गरीब औरत नुमा मखलूक मुझे गुस्से से सुर्ख आंखों के साथ देख रही थी। वो गर्जी, ये बच्चा मेरे हवाले कर दो। मैं असवद को लेकर पीछे हटने लगी। मैं कमरे की तरफ भागी। वो जोरदार आवाज में गर्जी, यहीं रुक जाओ। असवद भी डर के मारे रोने लगा, मगर मैं कमरे की तरफ भागी। अचानक तेज आवाज चलने लगी जैसे कोई तूफान आने वाला हो। बावजूद कोशिश के मैं कमरे के अंदर नहीं जा पा रही थी।
वो औरत अजीब हवा में उड़ती मेरे पास आई। उसने असवद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोली, मुझे दे दो। मैंने खुद को पीछे किया। वो बोली, दफा हो जाओ, ये बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी। हवा में उड़ती उस औरत ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं असवद को लेकर नीचे गिर गई। उसने असवद को पकड़ने की कोशिश की, मगर वहीं पर एक छड़ी पड़ी थी। मैं ये छड़ी बिल्लियों के लिए रखती थी। जब मैं सहन में बने चूल्हे पर लकड़ी पर खाना बनाती और इस दौरान अगर बिल्ली आ जाए तो मैं उस छड़ी से बिल्ली को डरा कर भगा देती। मैंने वो छड़ी उठाई और औरत को खींच कर मारी। छड़ी उसके मुंह पर लगी और वो एक झटके से पीछे हट गई। मैं उठी और कमरे के अंदर भागी। मैं कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुंडी लगाने ही लगी थी कि औरत ने दरवाजे को धक्के देना शुरू कर दिए। मैं दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। असद मुसलसल रो रहा था, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचा। यकीनन जो भी थी वो इंसान नहीं थी, ज़रूर कोई भूत प्रेत थी। उसने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। मैं असवद को लिए फर्श पर गिर गई। वो गिरजी, मैं इस बच्चे को लेकर ही जाऊंगी। मैंने कहा, ये बच्चा मेरी मालकिन की निशानी है, मैं मर जाऊंगी, बच्चा नहीं दूंगी। वो गुस्से से चिल्लाई, तो मर जा तू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो जिन्नी थी और मैं उसका मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। सिर्फ अल्लाह ही मेरी मदद कर सकता था। मुझे सूरह जिन जुबानी याद थी। मैंने ऊंची आवाज़ में सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही मैंने सूरह जिन की तिलावत शुरू की, जिन्नी रुक गई और वो पीछे हटने लगी। उसे पीछे हटता देखकर मैं और भी ज़ोर से तिलावत करना शुरू हो गई और जिन्नी कांपने लगी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अचानक बाहर आया, तूफान भी कम होने लगा। अभी मैंने आधी सूरह जिन पढ़ी ही थी कि जिन्नी गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं जल्दी से उठी, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और असवद को लेकर बिस्तर में सो गई। मगर असवद बहुत रो रहा था। वो हिचकियाँ लेकर रो रहा था। मैं उसे चुप करवाने लगी। बड़ी मुश्किल से असवद चुप हुआ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर में असवद सो गया। मैं पूरी रात डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकली। पूरी रात बिस्तर पर लेटे दिल ही दिल में सूरह जिन की तिलावत करती रही। खौफ के मारे एक लम्हे के लिए आंख बंद ना हुई। सुबह की पहली किरण फूटी। कमरे की खिड़की के बंद दरवाजे की दराड़ों से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आती महसूस हुई। मैं हिम्मत करके उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर सब कुछ नॉर्मल था। मुझे घर के उस अकेलेपन से खौफ आ रहा था। सुबह के 7 बजे थे। मजीद ने भी दिन 11 बजे तक आना ही था। असवद अभी पूरी रात सोता जागता रहा, इसलिए वो अभी भी सो रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और चची हनीफा को कॉल करके फ़ौरन घर बुला लिया। चची हनीफा को खुश रखे अल्लाह, ज़िंदगी सेहत दे, इतनी अच्छी हैं कि जब भी मैंने उन्हें बुलाया उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। थोड़ी देर में चची हनीफा घर पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोते हुए असवद को गोद में उठाया। असवद को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खोला तो चची थी। अंदर आई और कहने लगी, अरे शहनाज, सुबह सुबह ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि तूने मुझे बुला लिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। चची कमरे की तरफ जाते हुए रवानी में बोलती जा रही थी, वो तो शुक्र है बहू का साथ है, बड़ी अच्छी बहू है मेरी, पूरा घर संभालती हैं। जब से दोनों बेटों की शादियां की हैं मैं तो सच में सुखी हो गई हूँ। चची कमरे में गई और सोफे पर बैठ गई। चची ने अपना टोपी वाला बुर्का उतार कर सोफे पर रखा और बोली, अच्छा इतनी सुबह मुझे क्यों बुलाया। मैं कुर्सी पर बैठी और बोली, चची तुम चुप करोगी तो मैं कुछ बताऊंगी। मैंने असद को अपनी गोद में लिटाया। चची बोली, क्या हुआ, मालकिन मिल गई। मैंने कहा, नहीं चची। मैं चची को पेश आने वाला वाकया तफसील से सुनाया। चची आंखें फाड़े मेरी बातें सुन रही थी। कहने लगी, ए शहनाज, यह सवाल यह कि तेरी मालकिन इंसान ही थी और क्या ये बच्चा इंसान का है। मैं बोली, खुदा का खौफ करो चची, मैं 2 महीने बंगले में काम कर चुकी हूँ, कई बार वहाँ रातों को रुक चुकी। असवद तो मेरे पास ही रहता था। ये भला क्या बात हुई कि मालकिन और मालकिन का बच्चा इंसान नहीं है। चची, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम असवद को संभालो, इसे गोद लो ताकि मैं घर के काम कर सकूं। मैं इसे एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं उठी। मैंने असवद चची की गोद में दिया। चची ने असवद को संभाला। अपनी नज़र की ऐनक ठीक करते हुए बोली, शहनाज, अगर वो चुड़ैल आ गई तो मैं क्या करूँगी। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, चची तुम बहुत डरपोक हो, तुम असवद को संभालो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ और असवद के लिए दूध भी बनाना है। मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। चची के लिए नाश्ता बनाया, घर के काम ख़त्म किए।
اتنے میں اسود اٹھ گیا۔ میں نے اس کے کپڑے تبدیل کیے۔ چچی بھی ناشتہ ختم کر چکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اسود بستر پر کھیل رہا تھا، میں اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ چچی نے کہا، شہناز مجھے 1 کپ چائے تو پلا دے، مجھے بہت ٹینشن ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں جتنی جلدی ممکن ہو مالک کو ڈھونڈو، بس مجید آ جائے تو اسے کہنا کہ جلد از جلد اسے ڈھونڈ کر پولیس کے پیچھے لگے۔ ہمارے ملک میں پولیس کے پیچھے نہ لگو تو پولیس کام بھی کہاں کرتی ہے۔ میں نے چچی کی ہاں میں ہاں ملائی کہ اسی وقت میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میرے شوہر کا فون تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور بولی، مجید آپ کب تک آ جائیں گے؟ اب تو 10 بجنے والے ہیں۔ وہ بولے، شہناز گھر میں سب خیریت ہے؟ میں نے کہا، جی خیریت ہے۔ تو وہ بولے، شہناز میرے مالک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو چچی حنیفہ کو بلا لے، کہتی ہے تو میں خود انہیں فون کر دیتا ہوں، میرے مالک کی حالت تشویشناک ہے، میں 2-3 دن گھر نہیں آ سکوں گا۔ میں چلائی، کیا 2-3 دن؟ وہ بولے، شہناز 2-3 دن کی تو بات ہے، جس کا رزق کھا رہا ہوں، کیا میں انہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑا ہوں؟ میری آواز ہلکی ہو گئی۔ میں بولی، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں بھی تو اکیلی ہوں۔ وہ بولے، بھائی مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہمیں مشکل میں صبر کرنا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے میری بیوی بہادر ہے، تو فکر نہ کر، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، تیری مالکن بھی مل جائے گی اور اللہ میں اسود جیسا بیٹا دے گا۔ اسی لمحے میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے شوہر بالکل مجھے اسی طرح حوصلہ دے رہے تھے جیسے بچے کو دیا جاتا ہے۔ میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ میں بھی جوش میں بولی، آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ پاک آپ کے مالک کو زندگی دے، صحت دے، میں خود سب کچھ سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میرے شوہر مجھے حوصلے اور تسلیاں دیتے رہے کہ جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد فون بند کر دیا۔ چچی غور سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی، بولی، شہناز تو یہ کیسے سنبھالے گی؟ میں نے موبائل رکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں چچی، میرا شوہر خود پریشان ہے، اس کے مالک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی۔ چچی نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اللہ خیر کرے، سچ پوچھ تو مجھے بہت پریشانی ہے۔ چچی بستر پر لیٹ گئی۔ سارا دن پریشانی میں گزر گیا۔ میں منہ میں سورہ جن کی تلاوت کرتی رہی۔ شام ہوئی تو سر میں شدید درد ہونے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے شام کا کھانا تیار کیا، جسم میں بھی درد ہونے لگا۔ اسود کو بھی سنبھال رہی تھی۔ چچی کے سامنے میں نے کھانا رکھا۔ چچی نے کہا کہ شہناز تو کھانا نہیں کھائے گی؟ میں نے کہا، چچی سر میں اور جسم میں بہت درد ہے، تھوڑی دیر تک طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو کھا لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ چچی نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر کھانا ضرور کھا لینا، خالی پیٹ مت سونا۔ میں نے کہا، چچی ٹھیک ہے، تم کھاؤ، میں بعد میں کھا لوں گی۔ کل کے واقعے کا دماغ پر اتنا اثر تھا کہ خوف طاری تھا۔ میں سارا دن سورہ جن کی تلاوت کرتی رہی، گھر پر اور اسود پر پڑھ کر پھونکتی رہی۔ رات کے وقت مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے بخار کی دوائی لی اور سو گئی۔ صبح میرا بخار ہلکا ہو گیا، مگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ چچی نے میری بگڑتی طبیعت دیکھی تو بولی، شہناز خدا کے لیے مجھے باہر جانے دے، ڈاکٹر نہ سے محلے کے ڈسپینسر کو بلا لاؤں، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا، نہیں چچی، کہیں نہ جاؤ، اسود کا خیال کرو، یہ میری مالکن کی امانت ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چچی میرے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگی۔ پوری رات گزر گئی، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ میری طبیعت تھی کہ خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر چچی نے فون پر ہی محلے کے ایک ڈاکٹر کو بلایا۔ اس نے میرا چیک اپ کیا، دوائیاں دی۔ کوکاف کے شہنشاہ کے سامنے زرار جن کو مجرموں کی طرح پیش کیا گیا۔ شہنشاہ کوکاف نے کہا کہ زرار جن، تم نے بہت ادھم مچایا ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا، تمہیں اس سے کبھی خوف نہیں آیا کہ تم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ زرار جن نے کہا، جب میرے بیٹے کو مارا گیا تھا تو تب کسی نے کیوں نہیں یہ سوچا؟ جنزادی اسما اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور بولی، شہنشاہ۔ شہنشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے جنزادی کو روک دیا اور بولا، زرار جن، پورا کوکاف جانتا ہے کہ تمہارے بچے کی موت ایک حادثہ تھی، اب کیا تم اپنے بچے کا بدلہ ایک معصوم بچے کو مار کر لوگے؟ اپنی بیوی کو روکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، نہ کوکاف میں جگہ ملے گی اور نہ ہی دوسرے قبیلوں میں، پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ اتنے میں ایک جن زادہ دربار کے اندر حاضر ہوا۔ اس نے سر جھکا کر شہنشاہ کو آداب کہا اور بولا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، جنزادی اسما کا بیٹا اسود کی جان خطرے میں ہے، نہ صرف اس کی جان خطرے میں ہے بلکہ اس کی ملازمہ کی جان بھی خطرے میں ہے جو جنزادے اسود کو سنبھال رہی ہے۔ جن زرار کی بیوی نے جنزادے اسود کی ملازمہ کو شدید بیمار کر دیا ہے،
कुछ देर पहले ही मैंने जिन ज़रार की बीवी को हवा में उड़ते हुए इंसानों की दुनिया में जाते देखा है। जिन ज़रार की बीवी ना बच्चे को छोड़ेगी ना मुलाजमा को। शहनशाह गुस्से से गरजा। ज़रार जिन, अपनी बीवी को रोको वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। कोहकाफ में तुम तनहा रह जाओगे। क्या तुम तनहा अपनी जिंदगी गुजार लोगे? यह सुनते ही जिन ज़रार ने अपना सर झुका लिया। मैं बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। चची मेरे सिरहाने बैठी मेरे माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। मेरी आंखों से चंद आंसू निकले और तकिए में जज़ब हो गए। चची ने कहा, शहनाज, तेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तू मुझे कहीं जाने क्यों नहीं दे रही? सारी रात बुखार में तपती रही है। तेरा बुखार उतरता है और चढ़ता है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। तुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। असद मेरे पास ही खेल रहा था। मैंने उसे सीने से लगाया और बोली, चची, ये मेरी मालकिन का बेटा है। उसने अपनी अमानत मेरे हवाले की थी। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मालकिन को क्या मुंह दिखाऊंगी? चची बोली, अरे शहनाज, तू जिंदा बचेगी तो मुंह दिखाएगी। होश के नाखून ले, सुबह हो गई है। मैं बड़े बेटे को बुलाती हूँ और तुझे अस्पताल ले जाते हैं। चची बेड से उतरी कि उसी लम्हे जिनजादी वहां नमूदार हुई। अंगारा उगलती आंखों से देखते हुए बोली, कहाँ जा रही हो? इलाज की इतनी जल्दी क्या है? चची डर के मारे दोबारा बिस्तर पर बैठ गई। मैं तुम्हारी और इस बच्चे की रूह अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने असवद को जोर से पकड़ा। असवद रोने लगा। वो जिनजादी हमारी तरफ बढ़ी कि उसी असना में एक जिनजादा नमूदार हुआ। उसने जिन्नी को पकड़ा और बोला, रुक जाओ कृष्णा, छोड़ो इन्हें, ये बेकसूर हैं। जिनजादी चिल्लाई, ज़रार जिन, छोड़ो मुझे, अपने बच्चे का बदला लेकर रहूंगी। ज़रार जिन बोला, हमारा बच्चा किस तरह मरा है इसका सबूत मिल गया है। अस्मा जिनजादी ने हमारे बच्चे को नहीं मारा, उसे जहरीले सांप ने काटा था। अस्मा जिनजादी तो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। कृष्णा जिनजादी हैरान परेशान ज़रार जिन की तरफ देखने लगी। ज़रार जिन बोला, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें वो सबूत दिखाना चाहता हूँ। इतने में मेरी मालकिन भी नमूदार हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कृष्णा जिनजादी बोली, ज़रार जिन, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई और तुमने इन्हें बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ज़रार जिन बोला, मैं वादा करता हूँ। ज़रार जिन और उसकी बीवी कृष्णा गायब हो गए। अस्मा जिनजादी मुझे देखकर मुस्कुराई। असवद अपनी माँ को देखकर खुश हो गया। अस्मा जिनजादी ने आगे बढ़कर असवद को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगी। जिनजादी बोली, शहनाज, मेरे पास तुम्हारी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। तुमने जान पर खेलकर बच्चे की हिफाजत की। मैं मरते दम तक तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मैंने कहा, मालकिन, असवद है इतना प्यारा, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। जिनजादी बोली, नहीं शहनाज, तुम खास हो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। मैं कृष्णा जिनजादी से बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारी दुनिया में आई थी। मेरे शोहर इस दुनिया में नहीं रहे। असवद मेरे शोहर की आखिरी निशानी है। तुम फिक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि तुम पर कृष्णा जिनजादी के जादू का असर है। मगर अभी असर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अस्मा जिनजादी ने एक मोती मेरे हाथ पर रखा और बोली, ये बहुत कीमती मोती है, इसे बेच देना, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। फिक्र ना करो, अल्लाह जल्द तुम्हारी गोद भर देगा। मैं मुस्कुराई। अस्मा जिनजादी गायब हो गई। मैं चंद दिन में बिल्कुल सेहतयाब हो गई। हमने अस्मा जिनजादी का दिया हुआ मोती बेच दिया और हमारा सारा कर्जा उतर गया। अल्लाह ने 1 साल बाद मुझे एक नहीं 2 जुड़वां बच्चों से नवाजा और अब मेरी ज़िंदगी तो गुलो गुलजार बन चुकी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।